Hello, friends, a very warm welcome. And in the series that we have been taking up very important and pertinent topics, as you will see beforehand. Now we have come up to a stage where we are taking up very comprehensive and such topics which are not actually given or present in a format where you have all the ideas in a theoretical. आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज और यू कैन से पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसके पीछे भी एक थॉट प्रोसेस है, उसके पीछे कुछ आइडियोलॉजीज हैं, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन डेमोक्रेसी और इवन एट द ग्लोबल लेवल हमारा क्या सिमिलरिटीज हैं और हम क्या ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हैं। जब हम ग्लोबल कहते हैं तो बेसिकली इट्स अ वेस्टर्न सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। वेस्ट इज द डोमिनेंट पावर, वेस्ट इज द हेजिमोनी, वेस्ट इज द लीडर, वेस्ट इज विश्व गुरु। So in that sense, we have to see that how different systems are there, whether it is a Chinese or whether it is Russian system was there, and then you have a very dominant the Western political system of capitalist model, and how that is relevant with the developing country like India. Examination wants you to think beyond what is already existing, and it wants you to think and understand and appreciate. If you're part of Indian delegation going with the Prime Minister, if you're part of Indian delegation visiting WTO, United Nations, serving India somewhere within India. So a civil servant, whether he is an IPS, IRS or IAS or even Indian Foreign Service or even Indian Forest Service, they all they are all bound to interact with the political system. The moment they take I should say they take their journey towards Labasna. And same goes for all other civil servants also indirectly, state services and other ones. That is why political parties becomes very important. It is not a populist representation. पॉपुलिस्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा लेकिन उस मोल्ड को तोड़ने के लिए गागर में पत्थर मारना है, उसी से सागर बनेगा. So let's see how you are going to put it. And it's a series of experiments that we are doing, and we wish to make it as fruitful, as successful, and as dynamic and as brilliant as possible. So let's start. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, I'm here to listen. Thank you. Yeah, thank you, sir. Starting with the topic of political parties, we will discuss three aspects: political parties, NGO, civil society, as well as pressure group and interest group, and last of all, social movement. So all other things which have been said now, it is part of the larger social movement, and it is important because it gives representation to the society, as well as it also creates a grassroots level structure to form the government, as well as to criticize, as well as to hedge the powers of the government. तो पॉलिटिकल पार्टीज में बेसिक अप्रोच होगा कि नॉर्मेटिव एंड बिहेवियर अप्रोचेस में, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें कौन से मेंबर है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है लॉन्ग टर्म में, तो वो नॉर्मेटिव अप्रोच हो गया, पुराना मेथड था. लेकिन विद द न्यू पोस्ट बिहेवियर एज और 1970s 80s से बिहेवियर अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें बिहेवियर ऑफ द सिटीजन एज वेल एज द मेंबर्स इज इंक्लूडेड, कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंडिंग कहाँ से आता है, उनका रिलेशनशिप क्या है कैपिटलिस्ट मार्केट से, प्लस उसका रिप्रेजेंटेशन इन द SC ST OBC, इवन इन US और बाकी जगह ब्लैक पार्टी कौन से है, वहां पर मैक्सिकन और जो लैटिनो पार्टी कौन से है. तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सिटीजन, रिप्रेजेंटेशन कितना है, उनका आइडियोलॉजी कितना है, और कितना लॉन्ग टर्म वो सक्सेसफुल रहे, वो बिहेवियर एस्पेक्ट हो गया. तो बेसिक व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी. तो Harold J. Lasky, he is a well-known important personality with regarding to pluralist form of democracy. डेमोक्रेसी में प्लूरिस्ट फॉर्म होता है कि देर इज अ डिफ्यूज पावर स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन नहीं है. जो पावर स्ट्रक्चर इट इज शेयर्ड
and even negotiated as well as accommodated with each other. जैसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, एनजीओ होते हैं, सिविल सोसाइटी हो गए, कैपिटलिस्ट हो गए, लेबर हो गए, फार्मर ग्रुप हो गए, सब कोई मिलके जो डेमोक्रेसी के अंदर में वीव करते हैं, व्हील्स ऑफ डेमोक्रेसी रन करते हैं, वो एक प्लूरलिस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। तो उसमें वो बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज गिव रिप्रेजेंटेशन, it forms the state, it gives the legitimacy to the democratic system, as well as it also gives leadership to the people, क्योंकि people अकेले रूल नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप होना चाहिए। तो इट इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइज ग्रुप which creates forms the government so that welfareism can be put up in the society। तो ये बेसिक डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टी हो गया। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, एक और एक मॉरिस डेवर्जर फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। मार्क्सिस्ट बात करते हैं, लेन वो बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल वर्कर होते हैं, लोग होते हैं, दे आर नॉट केपेबल टू गिव लीडरशिप एट अ टॉप लेवल। तो क्या होना चाहिए? तो ही टॉक्स अबाउट कि एक वैनगार्ड पार्टी होना चाहिए। तो पार्टी शुड बी ऑफ स्पेशलिस्ट दैट विल क्रिएट अ रेवोल्यूशन, और इट विल बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, कि जो टॉप लीडरशिप बोलते हैं उसी का जो ऑब्जेक्टिव है उनको फॉलो करना पड़ेगा जो बाकी मेंबर है। और जो पार्टी सिस्टम रहेगा दैट विल लेजिस्लेट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। तो वैनगार्ड पार्टी मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, इवन इट इज फॉलोड टिल नाउ। जैसे डीपीआर के नॉर्थ कोरिया होगा, इवन क्यूबा के अंदर में, इवन चाइना के अंदर पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इलेक्शन होता है, अंदर में इलेक्शन होता है, पार्टी के अंदर में होता है, पार्टी के मेंबर सबको रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, वर्कर यूनियन रहते हैं, लेबर रहते हैं, सबको रहते हैं। तो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। मॉरिस डॉबल बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में कैसे पार्टी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी सिस्टम और जैसे इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल बैलेट सिस्टम है, अगर वोट देना है तो टू पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेजरली यूएस हो गया इसमें, और इवन इन यूके लेबर पार्टी कंजर्वेटिव हो गया, यूएस में डेमोक्रेटिक एज वेल आरएनसी रिपब्लिकन पार्टी हो गया। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इट सपोर्ट्स मल्टी पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन ये दोनों को हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इंडिया इस पे फिट नहीं बैठते। इंडिया इज ए वेरी स्पेशल केस। कोई भी वेस्टर्न के सेंट्रिक जो लॉज है और उनका थ्योरी है वो इंडिया पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाता है। ऑन द सेम बेसिस ही डिस्कस की अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच पार्टी होता है, सेल, कॉकस पार्टी एंड मिलिशिया। ऐसे बात करते हैं समोसा कॉकस। जैसे बात हम लोग करते हैं कि यूएस में है, वैसे ही लेटिनो के अंदर में कॉकस हो गया। कॉकस इज एलीट ऑफ द माइनॉरिटी। उनके पास 3 या 4 जन रहेंगे इन द सेनेट एज वेल एज इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वो उनका जो अपना एक प्रेस ग्रुप रहता है, एक उनका इंटरेस्ट रहता है, वो प्रमोट करता है कॉकस पार्टी के थ्रू। सेल पार्टी होता है, इट इज वेरी नैरो एलीट बेस्ड, वेर एज ब्रांच पार्टी एक तरह मास पार्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल सीपीआई, बीजेपी, कांग्रेस ब्रांच पार्टी होगी, उनके अलग अलग ब्रांच होता है अलग जगह पर। सेल पार्टी, पार्टी सेल होता है, छोटे होते हैं। मिलिशिया पार्टी इट इज जनरली एसोसिएटेड विथ बोल सकते सीपीआई मॉइस्ट मिलिशिया पार्टी हो गया, कि इसके अंदर एक नक्सलाइट मूवमेंट हो गया। तो वैसे ही अगर असम घना परिषद हो गया, और फिर वहां पर हम लोग एनएससीएन का बात करना है, नेशनल सोशलिस्ट, उसके एनएससीएन खापला होंगे, एनएससीएन आईएल हो गया, आईके हो गया, दोनों का अलग अलग मिलिशिया पार्टी हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द पार्टी इज डिफाइंड। फिर एक और एक एलिट थ्योरी। ये बात हो गया रिगार्डिंग बैलेट पेपर एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। अब ये बात करते हैं, जरूरी नहीं कि पार्टी सिस्टम वो इट इज मास बेस्ड, एलिट हो सकता है। तो ऑन द रॉबर्ट मिशेल कॉन्सेप्ट, जो यूएस के पार्टी है और जो यूरोपियन कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल यूके, दोनों को डिस्कस करेंगे। यूएस की जो पार्टी है उसमें आरएनसी और डीएनसी होता है। आरएनसी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, उसी के अंदर में जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होता है वो आते हैं और वो एक चुनाव लड़ते हैं, उनको एक स्पीच देना पड़ता है। उसके बाद ही जो मेंबर होते हैं, इट इज वेरी, जो मेंबर होते हैं उनका भी एक बहुत कम लिमिटेड अमाउंट रहता है। आप वोट करते हैं, उसी के हिसाब से इलेक्शन वहां पर फर्स्ट फेज जो होता है
चूज होता है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो जो अमेरिकन सिस्टम है वो एलिटी सिस्टम, इवन इन यूके वहां पर भी लेबर पार्टी और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वहां पर अलग अलग ब्लॉक से अपना पार्टी सेल हो गया, उस पर डिपेंडेंट है। तो वो इज एलिटिस्ट पार्टी, एलिट डिटरमाइन करेंगे ओवरऑल प्रिंसिपल एज वेल एज क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए पार्टी का। और उसी अगेंस्ट होता है एक मास पार्टी, उसमें अलग अलग फॉर्म होता है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड फासिस्ट। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में आईएनसी, बीजेपी, आप पार्टी, मास पार्टी हो गया। वेर एज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी हो गया। फासिस्ट एनएसडीपी, नेशनल सोशलिस्ट डेमोक्रेट, जो पार्टी था इन जर्मनी, इवन जो इटालियन फासिस्ट इन इटली एज वेल एज इन जनरल फ्रांको का पार्टी था, वो फासिस्ट पार्टी हो गया। तो अलग अलग जगह पर मास पार्टी होता है। मास पार्टी डिपेंड्स ऑन द मास लेवल, उसमें मास से उठ करके आते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मास से उठ करके आते हैं और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल वहां से आते हैं। एट द सेम टाइम जो इनका जो पॉलिटिकल फंडिंग होता है इट इज बेस्ड ऑन, बोल सकते हैं कि चंदा, चंदा क्लास टोकन बेस्ड होता है। लेकिन जो एलिटिस्ट सिस्टम होता है इट इज ऑन द मेजरली ऑन द लॉबिंग, कॉर्पोरेट लॉबी। तो ये दोनों में फर्क है। प्लस मास पार्टी सिस्टम पॉपुलिस्ट मेजर्स यूज करते हैं, लेकिन एलिटिस्ट होते हैं इट सिक्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ द मोस्टली इलीट क्लास। फॉर एग्जांपल यूएस में लॉबी सिस्टम है, वहां पर ऑयल लॉबी है, इवन गन लॉबी है, फार्मा लॉबी हो गया, अलग अलग लॉबी। तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द मास बेस्ड, एलिटिस्ट बेस्ड। दूसरा बात आते हैं आइडियोलॉजी। हिचनर बात करता है आइडियोलॉजिकल क्या ड्रिवन होना चाहिए होता है पार्टी सिस्टम में। तो तीन टाइप का होता है उसमें, इंटरेस्ट बेस्ड, डॉक्ट्रिनल एंड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक को बोलते हैं कैच ऑल पार्टी, मतलब कि हर एक पार्टी का जो बेसिक डॉक्ट्रिन है उसको अपने अंदर यूज कर लो और उसी के अकॉर्डिंगली लॉज बनाओ। इंडिया में ऐसे फॉर एग्जांपल आप पार्टी फेमस एक कैच ऑल पार्टी हो गया, जिसमें कोई अपना कोई स्टैंड कोई मुद्दा पर नहीं है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 क्या हुआ या फिर यूसीसी में क्या है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन। लेकिन जो डॉक्ट्रिनल पार्टी है उसमें सीपीआई हो जाता है, बीजेपी होगा, उसका अपना एक कोर मुद्दा होगा, सीपीआई का अपना मुद्दा होगा, बीजेपी का अपना कोर मुद्दा होगा जिस पर वो हिलेगा नहीं, तो इसलिए डॉक्ट्रिनल पार्टी हो गया। इंटरेस्ट पार्टी फोकसेस ऑन इंटरेस्ट, स्पेसिफिक इंटरेस्ट। इट कैन बी लिंग्विस्टिक, एथनिक, कास्ट बेस्ड पार्टी हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बीआरएस, बीआरएस इन तेलंगाना, उनका कोर मकसद ही था कि तेलंगाना को अलग करना आंध्र प्रदेश से। असम गण परिषद, उनका कोर था कि हम लोग असम के अंदर में ट्राइबल कौंसिल, बोडोलैंड पार्टी हो गया, उसके अंदर में बोडो ट्राइबल कौंसिल का बात करेंगे। गोरखालैंड का पार्टी अपना हो गया, वो बात करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ द गोरखालैंड। स्वतंत्र पार्टी इंडिया में जो 1960s समय था, दे वर द they were focusing much more on conservative bloc, landlord, business class, capitalist class and the established feudal order, उनको सपोर्ट करता था स्वतंत्र पार्टी। इट वाज मोस्टली लिबर्टेरियन इन प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, इंटरेस्ट पार्टी हो गया। देन पार्टी सिस्टम ऑफ डिस्कस, प्लूरलिस्टिक में दो टाइप होता है, टू पार्टी यूएस में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, मल्टी पार्टी इंडिया हो गया एग्जांपल। वन पार्टी सिस्टम में दो टाइप का होता है, एक डोमिनेंट पार्टी और एक और वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम एक ही पार्टी होगा देश के अंदर में, सीसीपी एग्जांपल हो गया, नॉर्थ कोरिया को एग्जांपल हो गया, क्यूबा के अंदर में हो गया, क्यूबा वेनेजुला हो गया एग्जांपल। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में इंडिया में जो अकॉर्डिंग टू रणजी कोठारी 1960s में अंडर द नेहरूवियन पीरियड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, मतलब कि और भी पार्टी थे लेकिन जो मेजर पार्टी थे 350 353 के आसपास उनका जो मेजोरिटी था, उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट थे वो 50 60s का 50 और 30s के आसपास थे और फिर 20s के आसपास थे, सीपीआई और स्वतंत्र पार्टी। डोमिनेट पार्टी सिस्टम होता है। धीरे धीरे वहां से हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम आया 1960s 70s में, फिर हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट बना 1990s में, और उसके बाद वापस से हम लोग वन पार्टी मेजोरिटी सिस्टम में आए 2014 से हम लोग अभी तक में, और वापस हम लोग कोलिशन में आ गए 2024 के बाद से। तो वी हैव कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन इन इंडिया, तो बिफोर फ्रॉम 1985 आईएनसी मेजर पार्टी था, बाकी सब जो पार्टी था इट वाज रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल एरिया, स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन आईएनसी इट वाज अ मास बेस्ड पार्टी। दैट इज वाई वहां से हम लोग डोमिनेंट पार्टी सिस्टम आए। तो नेहरूवियन पीरियड के अंदर में इवन लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पीरियड में भी डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था। फिर हम लोग जब आते हैं
चंद्रशेखर आजाद हो गए, फिर देवे गौड़ा हो गए, फिर आई के गुजराल हो गए। तो उसके समय में हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट बना। इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कोलिशन गवर्नमेंट था विथ मेजोरिटी पार्टी सिस्टम। फिर आईएनसी अंडर द मनमोहन सिंह, वहां पे गवर्नमेंट बना तो कोलिशन गवर्नमेंट था 2004 2008। और 2014 के बाद से लेकर के 2024 तक वन पार्टी बोल सकते हैं मेजोरिटी सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में था, लेड बाय बीजेपी एंड द एनडीए अलायंस। लेकिन 2024 के बाद से वापस से कोलिशन आ गया विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टी सच एज टीडीपी एज वेल एज जेडी एंड अदर स्मॉल पार्टीज। एचएम हाम हो गया, शिवसेना हो गया। तो कमिंग टू द इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप, तो पॉलिटिकल पार्टी का पूरा मकसद क्या रहता है कि दे वांट चेंज बाय बीइंग इन द गवर्नमेंट, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप बात करते हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट। अब इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप में क्या फर्क है? इंटरेस्ट ग्रुप होगा कि उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा, वर्कर इंटरेस्ट का अलग ग्रुप होगा, बिजनेस इंटरेस्ट विक्की विक्की हो गए, फिक्की एसोचैम हो गए, लेबर यूनियन हो गए, आईआईटीयूसी हो गया, वुमेन्स को होगा, सेवा हो गया एग्जाम्पल, अलग अलग एनजीओ हो गया, चाइल्ड का अलग होगा, क्राई हो गया। अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप है इंडिया के अंदर में। लेकिन वही इंटरेस्ट ग्रुप अगर सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनलाइन ऑन द ग्रास रूट लेवल लॉबी करेंगे, सपोर्ट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो बन जाएगा प्रेशर ग्रुप, क्योंकि दे आर प्रेशरिंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू लेजिस्लेट सम फॉर्म ऑफ द लॉ दैट विल सूट देयर इंटरेस्ट। तो प्रेशर ग्रुप स्पेशल केस है, इंटरेस्ट ग्रुप वाइड में। तो इंटरेस्ट प्लस प्रेशर ग्रुप इज प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट और प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इज प्रेशर ग्रुप। वो अलग अलग हो सकता है। उस फैक्ट क्या है कि प्रोफेशनल होते हैं, दे हैव द बैकिंग ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज उनके पास एक एक्टिविज्म होता है, एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट होता है। दे आल्सो साइन एमओयू विद सेवरल स्टूडेंट ब्लॉक्स, ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी करते हैं, लॉबी कर सकते हैं, पीएलआई फाइल कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को वाइडन करते हैं, ग्रास रूट लेवल में एजिटेशन करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप हो गया, जैसे एग्जाम्पल अभी सिवांग वैली में डैम कंस्ट्रक्शन चल रहा था, या फिर टूटीकोरी में देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉपर इंडस्ट्री। तो वैसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन, सब प्रेशर ग्रुप के एग्जाम्पल है। एट द सेम टाइम जो ई गेमिंग को अभी प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में कि ई गेमिंग को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसा होना चाहिए, ई गेमिंग का अलग प्रेशर ग्रुप हो गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, उसमें एसोचैम आ जाएंगे, बाकी सब हो गए। फार्मर प्रेशर ग्रुप आ जाएंगे जो बात करते हैं जीएम के अगेंस्ट में। तो इंटरेस्ट ग्रुप व्हेन दे आर प्रेसिंग द गवर्नमेंट फॉर देयर पर्पसेस, इट इज प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में बस ये फर्क है कि इलेक्शन लड़ते नहीं है, वो आउटसाइड वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को फ्रॉम आउटसाइड। पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन लड़के विद इन द गवर्नमेंट रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट गैब्रियल एलमंड, वो पॉलिटिकल थिंकर है, ही डिस्कस सेवरल फॉर्म ऑफ द प्रेशर ग्रुप। फॉर एग्जांपल एसोसिएशनल, एग्जांपल आईपीएस लॉबी, आईएएस लॉबी एसोसिएशन बेस्ड रहेगा। पुलिस के अपने एसोसिएशन होते हैं, कास्ट एसोसिएशन होते हैं। इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्रेशर ग्रुप हो जाता है, फॉर एग्जांपल एसोचैम हो गया, फिक्की हो गया, एआईटीयूसी हो गया, एक्सेप्ट। एनोमिक, तो एनोमिक मतलब ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं कि कुछ अचानक से सडनली देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ द डिमांड बाय द प्रेशर ग्रुप, और जो मूवमेंट अचानक से स्टार्ट होता है, सडनली स्टार्ट होता है, और उसमें इफ दे आर डिमांडिंग गवर्नमेंट ऑन सेवरल एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल बेटर लेजिस्लेशन फॉर द इंटरेस्ट ग्रुप, तो वो एनोमिक होता है। एनोमिक कैन बी रेडिकल एज वेल एज इट कैन बी ऑन द गांधीयन सत्याग्रह बेसिस। रेडिकल एग्जांपल हो गया ना, अगर बोल सकते हैं तो एनएससीएन हो गया, फिर जम्मू कश्मीर में जेकेएलएफ हो गया, नक्सलाइट मूवमेंट हो गया, एनोमिक ग्रुप हो गया। एज वेल एज अगर गांधीयन मूवमेंट होगा तो फार्मर एजिटेशन हो गया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो गया। तो अचानक से जो सडनली जो डिमांड होता है और ओवरऑल जो एक मूवमेंट क्रिएट होता है, उसको एनोमिक बोलते हैं। देन मॉरिसेस डोवर्जर वापस से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ differences in pressure group and political parties we have discussed.
एट द सेम टाइम जो प्रेशर ग्रुप है वो भी एनजीओ का एक सब पार्ट है। तो एनजीओ लार्जर अकाउंट हो गया। एनजीओ में जो एडवोकेसी होता है और दूसरा होता है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल एनजीओ का टोटल जो मकसद है इट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट या फिर वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में होंगे। तो एनजीओ जो है वो दो टाइप का होता है। क्या वो डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं, वो सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट सपोर्ट कर रहे हैं, तो एडवोकेसी ग्रुप होता है। प्रेशर, इट एक्ट्स एज अ प्रेशर ग्रुप। तो और दूसरा होता है डेवलपमेंटल एनजीओ। फॉर एग्जांपल लोन दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक लोन दिए। अभी हाल फिलहाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑन द हेल्थ केयर $500 million। इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक और लोन दिया था रिगार्डिंग फ्रेट कॉरिडोर इन इंडिया। तो जीका ने लोन दिया इंडिया को ऑन बोल सकते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो अलग अलग जो डेवलपमेंटल लोन है वो स्कीम हो गया, तो उसमें इनका पार्टिसिपेट एनजीओ दो टाइप के होते हैं। अब सोशल मूवमेंट में आते हैं। तो सोशल मूवमेंट ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया, वो हर एक एस्पेक्ट टच करता है। जेंडर मूवमेंट हो गया, कास्ट, रिलीजन, सेक्स हो गया, रीजन हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, डेवलपमेंट कंट्रीज हो गया, एंटी कैपिटलिज्म मूवमेंट हो गया, सोशलिस्ट मूवमेंट हो गया, फार राइट मूवमेंट है। हर चीज सोशल मूवमेंट के अंदर में आएंगे। उसके अंदर में पॉलिटिकल पार्टी का रोल आएगा जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप और डिफरेंसेस है उनका रोल आएगा, एनजीओ का रोल आएगा, सिविल सोसाइटी का रोल आएगा। तो जो सोशल मूवमेंट है उनका पहले क्लासिफिकेशन होता है वर्ल्ड वॉर टू, प्री वर्ल्ड वॉर टू एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। तो प्री वर्ल्ड वॉर टू में जो मूवमेंट है इट वाज फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल गोल। फॉर एग्जाम्पल विमेन राइट्स में बात हो रहा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। इवन 1950s में बात हो रहा था ब्लैक को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। तो 1960s में सिविल राइट्स एक्ट मूवमेंट था इन यूएस। फिर उसमें वर्कर राइट्स का बात हो रहा था टाइमली। फिर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन 1960s पोस्ट वर्ल्ड वॉर में देयर वाज अ न्यू वेव जिसमें इंटरनेशनलिटी का बात करते हैं। इसमें न्यू जनरेशन ऑफ राइट्स फॉर्म होता है। इन्वायरमेंटल राइट्स अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, अगेंस्ट द ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकता है। उसी समय एमसी मेहता केस चल रहा था इंडिया में 1980s में, जब आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी एज वेल एज देयर वाज अ मूवमेंट चुपको मूवमेंट 1970s में। फिर साइलेंट वैली मूवमेंट 1977 में, उसी एस्पेक्ट में इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ। फिर आईटी रेवोल्यूशन, आईटी में मूवमेंट हुआ। उसके साथ साथ फिर एलजीबीटी क्यूआई मूवमेंट हुआ। फिर व्हेन देयर वाज अ राइज ऑफ कैपिटलिज्म तो इनइक्वालिटी बढ़ा, तो वापस से फिर देयर वाज अ डिमांड फॉर इक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ स्टेट। तो फिर एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट हर जगह, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हो गया, इंडिया में भी मूवमेंट चल रहा था। फिर करप्शन का अगेंस्ट मूवमेंट हुआ। तो न्यू मूवमेंट जो है इट इज मेजरली मिक्स्ड। उसका जो डिमांड है इट इज हैविंग अ न्यू आइडियोलॉजी, इंटरसेक्शनलिटी होता है इसके अंदर में, इको प्लस फेमिनिज्म जोड़ लिए, या फिर एलजीबीटी क्यू राइट्स हो गया, क्यूर क्यूर मूवमेंट हो गया, चाइल्ड राइट्स मूवमेंट हो गया, ओल्ड एज उनका हिसाब से मूवमेंट हो गया, उनका केयरिंग हो गया। तो ओवरऑल जो मूवमेंट है इट इज कॉल्ड न्यू मूवमेंट। तो हैना अरेंट बात करती है सोशल मूवमेंट में कि जो पावर है इट इज रिसाइडिंग विद द पीपल, और इफ द पावर इज कंस्ट्रक्टिव देन इट इज पावर। लेकिन अगर पावर अथॉरिटी के थ्रू यूज होता है इट इज वायलेंस। तो पावर प्लस वायलेंस इट इज नॉट अ पावर। तो जो पीपल्स है फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द, तो टू पावर टू इज power to the people is most legitimate form of power than power over the people। तो वो हमेशा बात करते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए सोशल मूवमेंट का, हर लोग इंक्लूसिव होना चाहिए इसमें। एट द सेम टाइम जो एक माइंडसेट होता है कि पेट्राइकल माइंडसेट हो गया, एज वेल एज कि नॉट यूजिंग मच क्रिटिकल थिंकिंग, वो बढ़ना चाहिए। लेकिन और भी एस्पेक्ट है जो आज बात करते हैं निस्बेट और कार्ल फ्रेडरिक। निस्बेट बात करते हैं क्यों सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ न्यू वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वर्ल्ड वाइड।
जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, उससे एक नया चैलेंजेस क्रिएट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया, कैपिटलिस्ट मार्केट हो गया, डेवलपमेंट इकोनॉमी हो गया, न्यू इंपीरियलिज्म हो गया। एट द सेम ट्रेडिशनल अथॉरिटी था वो ब्रेक डाउन हो रहा है। जो पहले एक पंचायत सिस्टम था, पहले जो कास्ट स्ट्रक्चर था सोसाइटी के अंदर में, एक ज्वाइंट फैमिली था, वो टूटते आ रहा है। तभी देर इज अ नीड फॉर द न्यू सोशल मूवमेंट, जिसमें हम लोग बात करते हैं, नुक्कड़ नाटक हो गया, सब एक पार्ट है। फिर उस स्ट्रीट प्लेस हो गया, कैसे रोल प्ले करता है, क्लब्स हो गया, वो एक नया सोशल कोहेजन प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई न्यू मूवमेंट इज क्रिएटिंग। कार्ल फ्रेडे की बात करते हैं कि मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट होना चाहिए। तो एक आइडियोलॉजिकल होना चाहिए, गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल, तो आइडियोलॉजिकल गोल क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहिए, फंडिंग होना चाहिए इसके अंदर में, इवन इमोशनल अपील होना चाहिए। तो जैसे हम लोग कभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमेशा एक इमेज रहेगा जिसमें जो स्ट्रॉ है वो एक टर्टल के नाक के अंदर में, तो कहीं ना कहीं इमेज क्रिएट्स इमोटिव सेंस। तो इमोटिव इमोशन पर मूवमेंट होता है, तो इमोशन इंपॉर्टेंट है। behavior aspect of the social movement, it is important that that will encourage or that will lead to the more participation of the grassroots level और more inclusive बनेगा movement। तो ये तीनों बहुत important critique है as well as they are competitor on the social movement। फॉर द इंडिया में सोशल मूवमेंट को अगर बात किया जाए तो दो टाइप के मूवमेंट है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट चला था इसमें इट वाज मोस्टली ऑन नेशनल मूवमेंट, उसके अंदर में सब पार्ट थे, ट्राइबल मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट, किसान सभा हो गया, ट्राइबल मूवमेंट अलग अलग जगह पर, विमेन मूवमेंट उसमें हो रहा था, एस सी एस टी मूवमेंट चल रहा था उस समय अलग अलग फेजेस के अंदर में। तो ए आर देसाई बात करते हैं रिगार्डिंग कि उनका बिहेवियर एस्पेक्ट क्या था, उसमें लीडरशिप कौन प्रोवाइड कर रहे थे, मूवमेंट सस्टेनेबल था कि नहीं, फंडिंग कैसे मिल रहा था, कौन कौन सा प्लेयर्स थे मूवमेंट के अंदर में। फिर पोस्ट मूवमेंट का बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस में मूवमेंट इट हैज इवॉल्व फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म, कम्युनिस्ट मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट हो गया, फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो गया 1970 एटीज में। उसमें वर्ल्ड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1976 के अंदर में, 46 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। एट द सेम टाइम वहां पर हम लोग जीएम क्रॉप का बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है 1960s में। फिर मूवमेंट होता है, आईटी रिवोल्यूशन का बात होता है, तो वापस से देर इज टॉक फॉर द ओपन, अब वापस से एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट चलता है, को कोला वर्सेस कैंपा कोला मूवमेंट होता है 1990s में, अगेंस्ट द लेकमी और जो बिग ब्रांड थे इंडिया में उनके अगेंस्ट मूवमेंट होता है। 2000 के समय में देखा जाता है तो मूवमेंट एंटी करप्शन मूवमेंट होता है। फिर फिर एरे मूवमेंट हो गया, एरे फॉरेस्ट जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो गया, वेस्टर्न घाट मूवमेंट हो गया। तो हर एस्पेक्ट में जो मूवमेंट है इट इज सस्टेनिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एमएस रॉ कमेंट करते हैं, क्योंकि देर इज अ रिलेटिव डिप्राइवेशन। कोई एक मूवमेंट उठाते हैं वेस्टर्न घाट मूवमेंट, तो देर इज रिलेटिव डिप्राइवेशन ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन दैट रीजन, स्ट्रक्चर स्ट्रेन होता है ऑन द सोसाइटी, एज वेल एज मूवमेंट को और अच्छा बनाने के लिए उसमें इंक्लूसिव होना जरूरी है। तो विमेन का रोल आता है उसमें, पॉलिटिकल पार्टी का रोल आता है, इवन कैपिटलिस्ट का रोल आता है। जैसे बीएलएम मूवमेंट है, उसमें कैसे कॉर्पोरेट पार्टिसिपेट कर रहे थे, कैसे इंटरनेट में मूवमेंट चल रहा था, कैसे जो लोग आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिक ड्रामा क्रिएट कर रहे थे बीएलएम के ऊपर में। तो वो एक आता है। जैसे फिर एड्स, अगेंस्ट द एड्स मूवमेंट, तो रिबन होता है, कैसे एक सिंबोलिज्म इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट के अंदर में। तो हर एक जो मूवमेंट होता है इट क्रिएट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ अ सोशल कॉन्शियसनेस, और वो हमें बताता है, हमें पढ़ाता है कि कैसे समाज के अंदर दूरियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसे डील कर सकें। तो वी हैव टेकन अप दिस टॉपिक्स। Okay. So, Mansi, what do you take away from the whole discussion? So firstly, as we talked about political parties, तो उसमें और जैसे simply explain किया, तो I got to know about firstly new types जो हो सकती है, जैसे cell parties की बात की, mass parties, और उसको इंडिया से relate करके किया। तो that is one learning related to the political parties and social movements में जो बात करी, and उससे पहले जो 3 personalities से regarding discussion था, तो एक proper chronology और थोड़ी clear हुई। Divya, is she around? No, I don't think so.
So it was good and it was a free-flowing discussion. Ashik, I like the confidence and I like the flow. And as far as question is concerned, if these are all the questions, then can you move forward, please? We Yes, will go with question 25. So explain the impact of electoral system and cleavages in shaping party system with reference to developing countries. So with reference developing countries, तो first of all Bangladesh, India and South Africa ले लेंगे यहाँ पर example and explain the impact of electoral system and cleavages in shaping the political party. Electoral system first past post system हो गया, फिर बोल सकते हैं कि रोल ऑफ ईसीआई हो गया, कैसे शेप कर रहा है. फॉर एग्जांपल टू पार्टी सिस्टम हो गया, इवन मल्टी पार्टी सिस्टम इन साउथ अफ्रीका, एएनसी वर्सेस जो एक मुगाबे, नहीं एक और एक इम्पोर्टेंट, मुगाबे नहीं मुगाबे मुगाबे में है नहीं ना? सर, नहीं सर युगांडा में, हाँ, मुगाबे से मुगाबे युगांडा, हाँ रॉबर्ट मुगाबे. You are talking about Mr. You are जिम्बाब्वे, talking about फिर हम जिम्बाब्वे बोले ना आप. हाँ सर फिर जिम्बाब्वे, वहां पे तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है जिसका वो रामाफोसा हाँ करके क्या था एएनसी, वो. हाँ रामाफोसा, एक और एक सर उसके अलावा और आप जो बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? हाँ सर बांग्लादेश ले लेंगे, बीएनपी ले लिया और फिर अवामी लीग ले लें, दोनों के एग्जाम्पल लेकर के वी कैन वहां पे इस्लाम डिफाइन का छुपा इलेक्टोरल हुआ है सिस्टम. हाँ पार्टी की तरफ. तो पाकिस्तान का कौन बोले? डेवलपिंग कंट्री में आपको इंडिया के अलावा ये कंट्री देने पड़ेंगे. हाँ सर पाकिस्तान में थाईलैंड को आप क्या बोलेंगे? व्हाट पीटीएम, अबाउट थाईलैंड? थाईलैंड में भी पार्टी सिस्टम है लेकिन सर इट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो फर्क. तो क्वेश्चन है कि यही कि आप इम्पैक्ट बताइए इलेक्टोरल सिस्टम्स का, इलेक्टोरल सिस्टम का इम्पैक्ट. हाँ सर इसका एग्जांपल है कि हाँ, क्लीवेजेस इन शेपिंग पार्टी सिस्टम विद रिलेशन टू, क्या लिखा है ये, विद रिलेशन रेफरेंस टू टू डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज. मतलब कितना अच्छा, मतलब एक पूरा ब्रॉड क्वेश्चन अपने आप. इंडिया में भी आप देख लीजिए कि मतलब जो इम्पैक्ट पूछ रहा है वो बेसिकली इट इज आस्किंग द इम्पैक्ट. व्हाट इज द इम्पैक्ट? कितना ब्रॉड है. डेवलपिंग इम्पैक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव इम्पैक्ट है, इलेक्टोरल सिस्टम एंड सब कुछ क्लीवेजेस. इम्पैक्ट है. तो क्लीवेजेस में सर जो एथनिसिटी हो गया, लिंग्विस्टिक का इशू हो गया, वो क्लीवेजेस शेपिंग द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, कैसे अपने अपना प्रेशर क्लीवेजेस है इंटरेस्ट. जब बोलते हो, क्लीवेजेस है जब आप बोलते हो माल न्यूट्रिशन हटना चाहिए, हटता ही नहीं है. क्लीवेजेस है कि इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा होती ही नहीं है. क्लीवेजेस हैं ये सारे. क्लीवेजेस हैं कि मैं अगर बहुत बड़ा बिल्डर हूं और मैंने अगर आने वाली पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा में अगर मान लो बीजेपी आ रही है, मैंने उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट किया, प्रमोट किया और उसके बाद मैंने टेंडर ले लिए, वो क्लीवेजेस हैं. सतपाल महाराज जी कहते हैं पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, पर क्रूज का जो वो जो है क्रूज का जो टेंडर है वो मेरे बेटे को ही मिला है, तो पूरा ट्रांसपेरेंसी है. फिर कहते हैं मैंने अपने बेटे को रिक्वेस्ट की है कि उसको वो छोड़ दें. तो यू हैव टू ब्रिंग सर इसमें एकदम लिखा हुआ है शार्प. शेपिंग पार्टी सिस्टम लिखा हुआ है सर, वो तो आप हाँ क्लीवेज बता दे कि पार्टी सिस्टम अगर शेप हुआ वहां पर, तो इतने हम्म, इसमें यही एग्जांपल है कि 5 कंट्री का कोई डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री एग्जांपल ले लो और एक लिस्ट बना दो ताकि फिर उसको डिराइव कर हाँ सके वो तो है. नो, एग्जांपल हो. I am throwing ideas for thinking. I'm not saying we have to write that. We will be much more, objective. We will be much more subtle. We are not going to write directly in that sense. We are going to write in a subtle way. We are going to bring big vocabulary. We are going to bring, some report, some writing, some think tank. वो बोलेंगे हम तो. तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 13, इफ यू कैन बी वेरी क्विक. The party system in India is neither Western or indigenous. तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैक्लेवर सर, वो डिफाइन करता है पार्टी सिस्टम, लेकिन वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है क्योंकि इट इज अ मिक्स्ड हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि मल्टी पार्टी भी है और एट द सेम टाइम डोमिनेट पार्टी सिस्टम भी है, और वेस्टर्न कंट्रीज में इलीट बेस होता है और फिर पार्टीशल है. इंडिया में सब मिक्स्ड है, पार्टीशल भी यहाँ पर है, ब्रांच पार्टीज भी हैं, इवन डोमिनेट पार्टी सिस्टम भी हुआ है, इवॉल्व हुआ है. तो इट इज नॉट इट ऑल्सो नॉट इंडिजिनस. तो इसमें बोल सकते हो, एक्सप्लेन कर देंगे इसको. Okay. So thank you very much.
for all understanding, for clarity, for bringing a narrative, for bringing the flow, and taking up such a topic which, if revisited, can really help in advancing the thinking skills, advancing how to understand when we are reading other books and even writing answers. Thank you very much. Keep learning and moving towards success with confidence, clarity, and single-minded focus. All the best. Thank you, sir.